ہم گاؤں میں رہتے تھے۔ میرا شوہر روزانہ شہر سے میرے لیے جلیبیاں لے کر آتا تھا۔ میں جلیبیاں کھا کر سو جایا کرتی تھی۔ جب صبح اٹھتی تو میرے کپڑے گیلے ہوتے جیسے کسی نے پانی پھینکا ہو۔ ایک روز شوہر جلیبیاں لایا، میں نے چپکے سے پھینک دی۔ پھر اس رات جب میں سونے کا بہانہ کر رہی تھی تو اچانک شادی ہوئی۔ تو شادی کی رات میں نے اپنے شوہر سے ایک عجیب سی فرمائش کر دی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے ایک چیز کا بہت زیادہ شوق ہے اور میں اس کے بغیر بالکل بھی نہیں رہ سکتی۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم بولو، پھر دیکھتا ہوں کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ پہلے وعدہ کریں، جو میں آپ کو کہوں گی آپ ضرور کریں گے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم مجھے بتاؤ تو صحیح، میں کوشش کروں گا۔ میرا شوہر تھوڑا پریشان ہو گیا تھا کہ جانے میں کیا کہنے والی ہوں، لیکن جب میں نے اسے بتایا تو وہ ہنسنے لگا، بلکہ کافی زیادہ خوش بھی ہو گیا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے میٹھا کھانے کا بہت شوق ہے، لیکن گاؤں میں بالکل اچھی مٹھائی نہیں ملتی ہے۔ آپ کا کام شہر میں ہے، آپ آتے جاتے ہیں، تو آپ جب بھی شہر جائیں تو آپ میرے لیے کوئی میٹھی چیز ضرور لے کر آیا کریں، نہیں تو میں ناراض ہو جاؤں گی۔ میرا شوہر اس بات پر ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میٹھا تو میں تمہارے لیے لے آؤں گا، لیکن ایک بات بتاؤ کہ اتنا میٹھا کھانے سے کہیں تم موٹی تو نہیں ہو جاؤ گی؟ میں نے کہا کہ نہیں، میری جسامت ایسی ہے کہ میں بچپن سے اتنا میٹھا کھاتی ہوں لیکن بالکل بھی موٹی نہیں ہوتی۔ فکر نہیں کریں، میں ہمیشہ پتلی ہی رہوں گی، لیکن مجھے میٹھا ضرور کھانا ہے۔ میں سارے کام کروں گی، آپ کی ہر بات مانوں گی، لیکن اس بات پر میں بالکل بھی غفلت برداشت نہیں کروں گی۔ کتنا ٹائم لگے گا آپ کا؟ کتنے پیسے لگیں گے؟ تھوڑا میرے لیے میٹھا لے آئیں گے تو آپ کا کیا جائے گا؟ میرے شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے کچھ نہ کچھ میٹھا لے لیا کروں گا۔ وہ بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا، جبکہ مجھے لگا کہ شاید وہ تنگ آ جائے گا، لیکن اب جب بھی وہ شہر جاتا میرے لیے جلیبیاں لے کر آتا تھا۔ مجھے جلیبیاں بہت پسند تھیں۔ وہ جلیبیاں کھا کر میں سکون سے سو جاتی تھی، لیکن پھر میرے ساتھ کچھ عجیب و غریب حرکتیں ہونے لگیں جو بالکل بھی نارمل نہیں تھیں۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر کی لائی ہوئی جلیبیاں کھائی نہیں بلکہ پھینک دی اور سونے کی ایکٹنگ کرنے لگی، لیکن قدموں تلے سے زمین نکل گئی جب میں نے دیکھا کہ میرے کمرے میں کوئی موجود تھا، اور وہ ایک نہیں بلکہ 4۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور میرے ماں باپ گاؤں کے زمیندار تھے۔ میرے نام پر نہ جانے کتنے مربع زمین اور جانور تھے۔ میری شادی جس سے ہوئی وہ مجھ سے تھوڑا بڑا تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے اچھا لگ گیا۔ کہتے ہیں کہ کوئی آنکھوں کو اچھا لگ جائے تو پھر دل کو بھی اچھا لگ جاتا ہے، اور وہ شخص میری آنکھوں کو اچھا لگ گیا تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ حسین تھا۔ میرے ماں باپ کے ساتھ میرا ایسا رشتہ تھا کہ اگر میں ان کو کہتی کہ میری شادی فلاں شخص سے کروا دیں تو بنا سوچے سمجھے کرا دیتے۔ جب مجھے تصویر دکھائی گئی تو میرے دل سے آواز آئی کہ مجھے اسی شخص سے شادی کرنی چاہیے، اور میں نے ہاں کہہ دیا۔ میرے ماں باپ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، سارا خاندان میرے پیچھے تھا، لیکن میرے باپ کا کہنا تھا کہ خاندان میں شادی نہیں کروں گا کیونکہ خاندان میں کوئی لڑکا اس قابل نہیں ہے اور مجھے کوئی پسند نہیں آتا تھا۔ یہ شخص مجھے پسند آ گیا اور میں نے اسے شادی کر لی۔ اس کی اور میری عمر میں 7-8 سال کا فرق تھا، لیکن لگتا نہیں تھا۔ شادی کے دن ہی میں نے اپنے شوہر سے فرمائش کی کہ میرا ہمیشہ میٹھا کھانے کو دل کرتا ہے، آپ نے میرے لیے کچھ بھی میٹھا لایا کرنا ہے۔ وہ فوراً اس بات پر مان گئے۔ وہ بھی سمجھتے تھے کہ میں ایک ایسے گھر سے آئی تھی جہاں میں سب کی لاڈلی تھی اور میری ہر بات مانی جاتی تھی، اس لیے وہ انکار کیسے کر سکتے تھے۔ ویسے بھی 1-2 دن کی دلہن کو کوئی انکار نہیں کرتا۔ دلہن کے پاس یہی وقت ہوتا ہے کہ وہ سب سے اپنی بات منوا سکیں، اگر چاہیں تو کچھ اصول بنا لیں اور پھر وہ اصول ساری زندگی چلتے ہیں، ورنہ بعد میں تو اس کی عزت اور مقام ایسے گرتی چلی جاتی ہے کہ جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ بس شادی کے شروع کے دن ہی ہوتے ہیں اپنی بات منوانے کے لیے، اور میں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اب میرا شوہر جب بھی شہر جاتا میرے لیے جلیبی ضرور لے کر آتا تھا، اور اس کے ہفتے میں 2 سے 3 چکر ضرور لگتے تھے۔ ایسے میں جلیبیاں میں کھاتی، لیکن ایک بات بہت عجیب ہوتی تھی، جیسے ہی میں اپنے شوہر کی لائی ہوئی وہ جلیبیاں کھاتی مجھے بہت زیادہ نیند آنے لگتی۔ سنا تھا کہ میٹھا کھانے سے انسان کو اچھی بھلی نیند آتی ہے، لیکن میری نیند تو کچھ زیادہ ہی اچھی ہو گئی تھی۔ جلیبیاں کھاتے ہی 5 منٹ نہیں گزرتے تھے کہ میں سو جاتی تھی۔ اس کے بعد کبھی میں رات کو جاگ گئی تو کبھی رات بھی گزر جاتی اور میں صبح ہی جاگتی۔ اس طرح مجھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ میرے پیچھے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ سوئے ہوئے اور مرے ہوئے انسان میں زیادہ فرق نہیں ہوتا، بس ایک ہی فرق ہوتا ہے کہ سویا ہوا انسان جاگ جاتا ہے اور مرا ہوا انسان کبھی نہیں جاگتا ہے۔ اس لیے اس کو پتہ نہیں چلتا کہ جس وقت وہ سو رہا تھا اس وقت کیا ہو رہا تھا۔ جب جاگتی تو کبھی رات کا کھانا نہ بنا ہوتا تو کبھی دن کا، لیکن میرا شوہر کوئی بھی بات نہیں کرتا تھا اور نہ غصہ ہوتا۔ مجھے جاگا ہوا دیکھ کر اتنا ہی کہتا کہ جاگ گئی ہو، چلو آؤ کھانا کھا لو، یا چلو کہیں باہر چلتے ہیں، یا کوئی کام بتا دیتا،
लेकिन गुस्सा बिल्कुल भी नहीं होता था, जबकि अगर उसकी जगह कोई और होता तो उसने यही कहना था कि खा पी कर सो जाती हो, ये किस किस्म के एतबार हैं। इस बात के लिए तो मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार थी, और मुझे इस बात पर पूरा यकीन भी हो गया था कि मेरा शौहर मुझे बहुत मोहब्बत करता है, इसलिए उसे मेरी कोई बात बुरी नहीं लगती है। उसे मेरा काम ना करना बुरा नहीं लगता था, लेकिन अब ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं जलेबियाँ खाकर सो गई और रात 2 बजे मेरी आंख खुली तो मेरा शौहर घर में नहीं था, जबकि इस टाइम आ जाया करता था। उसका फ़ोन भी बंद था। मैंने देखा तो मुझे बैठक की लाइट ऑन नज़र आई। रात के 2 बजे बैठक की लाइट ऑन होना तो चलो गलती से भी तो हो सकता है, लेकिन फिर जब मैं करीब गई तो मुझे वहाँ से कुछ आवाज़ें आईं। एक आवाज़ तो मेरे शौहर की थी, दूसरी आवाज़ को मैं पहचान न सकी, पर इतना ज़रूर समझ गई थी कि किसी लड़की की आवाज़ है। लेकिन उस टाइम बैठक में कोई लड़की क्या कर सकती थी, वो भी मेरे शौहर के साथ। मेरा माथा खटक गया, मैं गुस्सा हो गई और मुझे जितनी भी गनूदगी थी वो सारी की सारी अचानक ही उतर गई। मैंने दस्तक दी तो वहाँ पर खामोशी छा गई और 10-15 मिनट के बाद मेरा शौहर बाहर आया। कहने लगा कि तुम जाग गई? तुम जाग कैसे गई? मैंने कहा मैं जाग कैसे गई से क्या मतलब है आपका? इंसान सोता है तो जागता भी है। आप बैठक में क्या कर रहे हैं? कहने लगा कि मेरा दोस्त आया हुआ है। मैंने कहा कि दोस्त की तो आवाज़ नहीं आई मुझे, बल्कि किसी लड़की की आवाज़ आई। तो कहने लगा उसकी बीवी भी तो साथ आई है। मैंने कहा उसकी बीवी और उसका शौहर रात के 2 बजे हमारे घर में क्या कर रहे हैं? और अगर बीवी आई है तो फिर मैंने भी सलाम करना है, मैं भी मिलती हूँ उनसे, उनके लिए कुछ खाना चाय वगैरह बनाती हूँ। तो मेरे शौहर ने कहा नहीं, वो लोग चले गए हैं, जब तुमने दस्तक दी तो वो जाने के लिए ही खड़े थे, रवाना हो गए। बैठक का एक दरवाज़ा बाहर भी खुलता था, इसलिए शायद मेरे शौहर ने उनको वहाँ से निकाल दिया था। लेकिन अजीब सी बात थी कि रात के 2 बजे कौन किसी के घर अपनी बीवी को लेकर यूं आता है। मुझे अपने शौहर पर शक हो गया, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा शौहर मुझसे इतनी मोहब्बत करता है, मेरी हर बात मानता है, जो मेरे फ़राइज़ हैं यानी घर के काम करना वो भी मुझसे नहीं मांगता। उसने मुझे घर में नौकरानी भी रख दी थी, मैंने सिर्फ खाना बनाना होता था, वो भी कभी कभी मेरा शौहर खुद ही बनाता था या बाहर से ले आता था। मेरी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी गुजर रही थी। मुझे इतना अच्छा शौहर मिला था कि मुझे उस पर शक करने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन मुझे मेरे शौहर ने कहा कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मैंने कहा कितने पैसे? तो उसने बहुत बड़ी रकम बता दी। मैंने कहा कि पैसे तो बहुत ज़्यादा हैं। वो कहने लगा कि तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है, अपने बाबा से कहो। मैंने कहा कि जब बाबा को पता चलेगा कि आप पैसे मांग रहे हैं तो वो कुछ भी करके दे देंगे। मेरे शौहर ने कहा कि नहीं, बाबा को ये नहीं बताना कि पैसे मैं मांग रहा हूँ, तुमने अपना नाम लगाना है। मैंने कहा कि मैं क्या कहूँगी, अभी मेरी शादी हुई थी तो उन्होंने मुझे सब कुछ लेकर दिया, ऐसी कोई बड़ी फरमाइश भी नहीं है मेरे दिमाग में कि जिसको सुनकर वो मान जाएं। मेरे शौहर ने कहा कि अब ये तो तुम्हारी अक्ल है ना कि तुम किस तरह बात करती हो, बस मेरा नाम नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो समझेंगे कि हमारा दामाद हमारे पैसे पर नज़र रखता है, लालची है, खुद कुछ नहीं कर सकता, पैसे हमसे मांग रहा है, तो फिर हमारी बेटी को क्या खिलाता होगा। मैंने कहा कि नहीं, आपकी इज्जत मेरी इज्जत है, इस तरह कोई बात नहीं करूँगी। आपको पैसे चाहिए ना, मैं आज ही बाबा को कॉल करती हूँ। मैंने अपने बाबा को कॉल की और कहा कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। उन्होंने कहा बेटा तुम्हें पैसों की क्या ज़रूरत है। उनको बहुत सारी बातें सुनानी पड़ी और काफ़ी सारे मुझे झूठ बोलकर मैंने उनको मनाया कि मुझे सोने का सेट लेना है। उन्होंने कहा कि शादी में तुम्हें 100 तोले सोना दिया था, वो तुम्हारे किसी काम नहीं आया। मैंने कहा कि नहीं, मुझे कोई नए डिज़ाइन का सेट पसंद आ गया है, मुझे वही लेना है। मेरा शौहर भी मना कर रहा है, लेकिन बस मेरा दिल उस पर अटक गया है। मेरे बाबा ने कहा कि तुम तो ऐसी कभी भी नहीं थी, लेकिन चलो ठीक है, तुम्हारी जिद है तो क्या कर सकते हैं। उन्होंने पैसे भेज दिए जो मैंने अपने शौहर के हवाले कर दिए। एक दिन एक मज़ारा हमारे घर आया और उसने एक फ़ाइल मुझे पकड़ाई और कहा कि ये बड़े साहब को दे दीजिएगा, बहुत ज़रूरी फ़ाइल है। मेरे शौहर ने पैसे लेकर यही कहा था कि उसे ज़मीनों के लिए खाद लेनी है, ज़मीन बहुत ख़राब जा रही है और ट्रैक्टर भी ख़रीदने हैं। लेकिन इस फाइल को देखकर तो लगता था कि ज़मीन सिर्फ ख़राब नहीं, ज़मीन तो कब की बंद हो चुकी थी, उन पर तो एक दाना भी नहीं उग रहा था। मेरे शौहर ने फिर वो पैसे कहाँ लगाए, जबकि उसने तो कहा था कि मुझे ज़मीनों के लिए पैसे चाहिए, जबकि उसने तो कहा था कि मुझे ज़मीनों के लिए चीज़ें लेनी है, लेकिन ज़मीनें बंजर हो चुकी थी। मेरा शौहर उन पैसों पर अयाशी कर रहा था, वो घर की चीज़ें भी उन्हीं पैसों से ला रहा था। कल को वो पैसे ख़त्म हो जाते तो वो फिर मुझसे और पैसों का मुतालबा करने वाला था, क्योंकि उसके पास तो आमदनी का कोई ज़रिया नहीं था। उसका साफ मतलब यही निकलता था। मैंने जाकर अपनी अलमारी खोली तो उसमें मेरे जेवरात भी नहीं थे, यानी इससे पहले जो घर के खर्चे चल रहे थे उसके लिए उसने मेरे जेवर बेच दिए थे और मुझे एहसास नहीं था कि 100 तोले सोना मेरी अलमारी से गायब हो चुका है। इसका मतलब है मेरा शौहर मुझे इस्तेमाल कर रहा है।
मेरा शौहर मुझे न जाने कैसी चीज खिला रहा था कि मैं हर टाइम सोती रहती थी। अब तो मेरा ब्लड प्रेशर भी लो रहता था और जब मेरी आंख खुलती तो बैठक में कोई ना कोई महफिल चल रही होती। मेरा शौहर वहाँ खुशगपियां मार रहा होता था। कभी कमरे से गानों की आवाजें आती तो कभी लड़कियों की कि उसने क्या मुझे समझा था। डॉक्टर के पास की तो डॉक्टर ने मुझे ये बताया कि आपको नींद की दवाई दी जा रही है। इतनी नींद इंसान को नहीं आती, जबकि आप तो उम्मीद से भी नहीं है। आपके साथ ऐसा कोई मसला नहीं है तो फिर आपको इतनी गैर मामूली नींद कैसे आ सकती है। अब मुझे शक पड़ गया था। मैंने एक दिन अपने शौहर की लाई हुई जलेबियां नहीं खाई और उनको फेंक दिया। उस दिन मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। मैं पूरा दिन जाग रही थी कि जिस टाइम मुझे सोना चाहिए था उस टाइम भी मुझे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने सोने का नाटक किया। मेरा शौहर कमरे में आया। मुझे लगा कि वो सोने के लिए कमरे में आ रहा है, लेकिन वो मुझे देखने आया था कि ये सो रही है या जाग रही है। वहां से मुझे देखकर वो वापस चला गया और फिर मुझे बैठक का दरवाजा खुलने की आवाजें आई। उसके बाद घर में म्यूजिक गूंजने लगा, औरतों की आवाजें आने लगी। इसका मतलब है कि मेरा शौहर मुझे बेहोश करके घर में शबाब की महफिल सजाता था। मैंने अपने शौहर पर धावा नहीं बोला, बल्कि चुपके से उठकर वहां से चली गई। अपने बाबा को कॉल की जो मुझे आकर ले गए और अगले दिन मेरा शौहर मुझे ढूंढता हुआ घर तक आया। कहने लगा कि आपकी बेटी घर पे नहीं है। मेरे बाबा ने कहा कि वो तो यहाँ भी नहीं है। मैंने अपनी बेटी तुमसे लेनी है, तुम्हारे साथ रुखसत की थी, कहाँ है मेरी बेटी? जबकि मैं अपने बाबा के घर पर ही थी। मेरे बाबा ने मेरे शौहर को बहुत जलील किया। वो मुझे जगह जगह ढूंढता फिर रहा था। मैंने अपना फोन भी ऑन रखा था, लेकिन मैं उठा नहीं रही थी। फोन बजता रहता था। बहुत परेशान हुआ। बिलाखिर घर आ गया और कहने लगा कि मुझे नहीं तलाश हो रही, आप ही मदद करें। तो फिर बाबा ने सब कुछ बताया और ये भी बताया कि तुमने मेरी बेटी के साथ जो किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम उसको बेहोश करके खुद अयाशियां कर रहे थे, वो भी उसके पैसों से। तुमने मेरी बेटी को समझ क्या रखा था? मेरे बाबा ने बिल्कुल भी देर न लगाई और उस पर खुला का केस करवा दिया। मैंने भी अपने बाबा का साथ दिया। मेरे बाबा ने कहा कि तुम ऐसे शख्स के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। हमने इसको क्या समझा था और वही क्या निकला। ये एक अयाश परस्त इंसान है और इसके साथ जिंदगी अच्छी नहीं गुजर सकती है। ये कभी भी एक अच्छा शौहर नहीं बन सकता और एक अच्छा बाप बनना तो बहुत दूर की बात है। उसने तुमसे शादी सिर्फ तुम्हारी दौलत के लिए की थी। हमसे गलती हो गई, हम उसे पहचान न सके। हमने अपनी हीरे जैसी बेटी उसको दे दी, पर अब हम अपनी गलती सुधारेंगे। बात इतनी सिर्फ नहीं थी। मेरा शौहर पहले भी इस तरह की हरकतें करता रहता था। उसने मुझसे शादी इसी वजह से की थी क्योंकि मेरे पास बहुत दौलत थी। उसका ये भी प्लान था कि वो मुझे बेहोश करके छुप छुपा कर ये सब काम करेगा। और जब मैंने उसे कहा कि मुझे हमेशा मीठा खाने को दिल करता है, मेरे लिए कोई मीठी चीज़ लेकर आनी है, तो गोया उसके लिए तो ऐसा था कि अंधा क्या मांगे दो आंखें। उसके लिए तो ये बिल्कुल ही ऐसे था। वो जलेबी में बेहोशी की दवा मिलाकर मुझे खिलाया करता था। जो दूसरों की बीवी बहन बेटियों को अपने घर में बुला सकता था, वो कल को अपनी बीवी को भी बेच सकता था। इसलिए मैंने उसके साथ रहने से इनकार कर दिया। मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती थी, जिसने एक दिन भी मेरे साथ मियाँ बीवी का रिश्ता न रखा, बल्कि मुझे बेहोश करके दूसरी औरतों के पास जाता रहा। वो भी मेरे ही लाए हुए पैसों से। अपने शौहर को मैंने छोड़ दिया और इस सब को कोई बुरा ख्वाब समझकर मैं भूल गई। 2 साल बाद फिर से मेरी शादी हुई और अब मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। मुझे अपने साबका शौहर के बारे में पता चला है कि वो अपनी सारी जमीन बेचकर सड़क पर आ गया है, सब कुछ बेचकर खा गया है और आजकल उसके हालात बहुत बुरे हैं। लेकिन ऐसे इंसान के साथ यही होना चाहिए जिसे इंसान की कदर ना हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल मेरी आवाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगली कहानी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।